خواتین وضو کے اہم مسائل ضرور سیکھیں۔ نمبر 1، ننگے ہو کر غسل کیا تو وضو ہوگا یا نہیں۔ نمبر 2، باتھ روم میں وضو کیا تو ہوگا یا نہیں۔ نمبر 3، دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو ہوگا یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدلیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو بھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں۔ کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدل لیے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیا حکم ہے؟ ناظرین، وضو والے جتنے بھی اعضاء ہیں، یعنی وضو میں چار فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں بازو کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو غسل میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ پورے جسم پر پانی بہا جائے، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، ویسے ہی نہ رہا تھا، تو اب بھی اگر اس کے وضو والے اعضاء یہ دھل جاتے ہیں، ان پر پانی بہ جاتا ہے، وضو کے یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص برہنہ ہو گیا تو اس کا وضو فاسد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ حالت میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو اگر کوئی شخص برہنہ ہو جائے، یعنی اس کا سطر کھل جائے، تو اس سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وضو اس کا باقی ہے۔ ہاں، سطر کا دوسرے کے سامنے چھپانا یہ فرض ہے، لیکن اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو باقی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز پیش آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تب تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ البتہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہوتا ہے، تو اسی غسل والے وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ غسل کے کچھ آداب و مسائل ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں۔ غسل خانے میں جا کر کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ غسل کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ غسل کے بعد کوئی تبدیلی لاحق نہ ہوئی ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کے بعد وضو کرے تو وہ میرے طریقے پر نہیں، برہنہ ہو کر غسل کرنے سے غسل ہو جائے گا، مگر غسل کرنے میں احتیاط، یعنی بند جگہ غسل خانہ وغیرہ میں نہائے تو سب کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے، جس کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ جیسا کہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کریں، مگر یہ گنجائش بہت الگ ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہ ہے، بشرط بتائی گئی احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں، لہذا غسل برہنہ ہو کر ہو جائے گا، اور جب غسل ہو جائے گا تو نماز بھی اس غسل سے پڑھنا جائز اور درست ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل خانے وغیرہ میں بھی سطر کر کے نہائیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرمایا کرتے تھے کہ ان پر سونے کی
टिड्डियां गिरने लगी तो वो उन्हें अपने कपड़े में जमा करने लगे तो उन्हें उनके रब ताला ने आवाज दी, ए अय्यूब जिन्हें आप देख रहे हैं, क्या मैंने आपको उससे गनी नहीं कर दिया? तो उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब क्यों नहीं, लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हूँ। अलबत्ता जहाँ मुख्तलिफ मर्द मिलकर गुस्ल करते हूँ जैसा कि नहरों, तालाबों या स्विमिंग पूल्स में होता है तो वहां बरहना होना जायज नहीं। बल्कि सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है वो हम्मामों में सिलवार के बगैर दाखिल ना हो। नाजरीन, ऐसी जगह जहां किसी की नजर पड़ने का अंदेशा ना हो बरहना गुस्ल करने में शरअन कोई हरज नहीं। आजकल गुस्ल खाने ऐसे ही होते हैं जिनमें बेपर्दगी का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता, लिहाजा उनमें मुकम्मल बरहना गुस्ल करना बिला कराहत जायज और दुरुस्त है। सर का ढकना जरूरी नहीं, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बरहना नहाने की शहादत सही हदीस से साबित है। गुस्ल से पहले वजू कर लेना मसनून है, चुनांचे जब पहले वजू किया जाएगा तो जाहिर है कि आदमी बरहना ही रहेगा, जिससे मालूम हुआ कि बरहना होने से वजू और गुस्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल बरहना गुस्ल किया करते थे, एक दूसरे की तरफ देखा करते थे और मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल किया करते थे। तो बनी इसराइल ने कहा कि वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को हम लोगों के हमरा गुस्ल करने से सिवाय इसके कुछ माने नहीं कि वो फितक एक किस्म की मर्दाना बीमारी में मुब्तला है। इत्तिफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और अपना लिबास पत्थर पर रख दिया। वो पत्थर उसका लिबास लेकर भागा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके ताक़ुब में ये कहते हुए दौड़े कि ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ए हजर मेरे कपड़े दे दे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख लिया और कहा, वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ बीमारी नहीं है, और पत्थर ठहर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास ले लिया और पत्थर को मारने लगे। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मूसा अलैहिस्सलाम की मार से उस पत्थर पर 6 या 7 निशान अब तक बाकी हैं। नाजरीन, उसके अलावा वजू के टूटने के असबाब के बारे में बहुत से सवालात होते हैं, कुछ गलत फहमियां होती हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। नाजरीन, कपड़े के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के उससे वजू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वजू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वजू की जरूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज दाखिल होने से रोजा और बदन से किसी चीज के खारिज होने से वजू टूट जाता है। वजू टूटने के असबाब दर्ज झेल हैं। जिन चीजों से वजू टूट जाता है 2 किस्म की है। नंबर 1, जो इंसान के जिस्म से निकले जैसे पेशाब, पायखाना, रीह वगैरह। नंबर 2, जो इंसान पर तारी हो जैसे बेहोशी, नींद वगैरह। पहली किस्म यानी जिस्म इंसानी से निकलने वाली चीजों की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1, जो पेशाब व पायखाना के रास्ते से निकले। नंबर 2, वो जो बाकी बदन के किसी मकाम से निकले जैसे कै, खून वगैरह। उन दोनों रास्तों के अलावा जिस्म के बाकी हिस्से के किसी मकाम से कुछ निकलने की ये सूरतें हैं। कोई नापाक चीज निकले और जिस्म पर बहे, मसलन खून, कज, लहू या पीप वगैरह, तो वजू टूट जाता है। खा थोड़ी सी बहे, अगर आंख में खून निकल कर आंख में ही बहा और बाहर नहीं निकला तो वजू नहीं टूटता, क्योंकि आंख के अंदर का हिस्सा ना वजू में धोना फर्ज है ना गुस्ल में, और अगर बाहर निकल कर बहा तो वजू टूट जाएगा। कै में अगर पिट
खून या खाना या पानी मुंह भर के निकले तो वजू टूट जाएगा। अगर मुंह भरने से कम है तो वजू नहीं टूटेगा। मुंह भर के वो है जो बगैर मुशक्कत के ना रुक सके। अगर खालिस बलगम निकले तो वजू नहीं टूटेगा, हाँ मुंह भरकर ही क्यों ना हो। मुंह या दांतों से खून थूक के साथ मिलकर आए, अगर खून गालिब आ गया या बराबर है तो वजू टूट जाता रहेगा, और कम है तो वजू नहीं टूटता। अगर जख्म या पर खून जाहिर हुआ और उसकी उंगली या कपड़े से पूछ लिया और फिर जाहिर हुआ, फिर पूछ लिया, कई बार ऐसा हुआ, अगर ये सब दफात का खून मिलकर इतना हो जाता है कि बह जाए तो वजू टूट गया, वरना नहीं। अगर आंख या कान या छाती या नाक या किसी हिस्से जिसमें से दर्द के साथ पानी निकला तो उससे वजू टूट जाएगा। अगर बगैर दर्द के निकला तो वजू नहीं टूटेगा। अगर आंख ना दुखी हो, ना उसमें कटक हो और महज नजला की वजह से या यूं ही पानी बहे, आंसू निकल आए, और वजू नहीं टूटेगा। अगर जमा हुआ खून मसूरे के दाने के बराबर नाक साफ करते वक्त निकले तो वजू बाकी रहा। वजू टूटने वाली दूसरी किस्म की चीजें यानी जो इंसान पर तारी होती है उसकी ये सूरत है। नंबर 1, नींद लेटकर सोना, खा चित हो या पट हो या करवट हो या तकिया वगैरह के सहारे से हो, और अगर किसी शक्ल पे हो जिससे सुरीन जमीन से जुदा हो, या सिर्फ एक सुरीन पे सहारा देकर सो जाए तो वजू टूट जाएगा। सहारे का मतलब यह है कि अगर सहारा हटा लिया जाए तो वो गिर पड़े और सुरीन जमीन से जुदा हो जाए। अगर बगैर सहारा लिए खड़े खड़े या बगैर सहारा लगाए बैठकर सो जाए, या नमाज की किसी हयात पर जो मर्दों के लिए मसनून हो, मसलन सजदा या कायदा में मसनूना हयत पर सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। अगर दोनों जमीन पर बैठा है, घुटने खड़े हैं, हाथ पिंडलियों पर लिपटे हुए हैं और सर घुटनों में है तो उस हालत में सोने से वजू नहीं टूटेगा। नंबर 2, बेहोशी, खा बीमारी या किसी और वजह से हो, मसलन गशी, जुनून, मिर्गी और नशा वगैरह से बेहोशी हो जाए तो वजू टूट जाता है, अगरचे थोड़ी देर ही हो। उसकी हद यह है कि उसके पाँव में लर्जिश आ जाए। नंबर 3, नमाज के अंदर कहका मारना यानी इस तरह खिलखिलाकर हंसना कि उसके बराबर वाले सुन लें। कहका वजू और नमाज दोनों को तोड़ देता है, खा अमदन हो या सहवन। अगर नमाज के बाहर कहका से हंसे तो वजू नहीं टूटता। नंबर 4, मुबाशरत फाहिशा यानी औरत और मर्द की शर्मगाहों का इस तरह मिलना के नंगे हूं तो वजू टूट जाएगा। उसके अलावा खून या पीप या जर्द पानी कहीं से निकलकर बहा, उस बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है तो वजू जाता रहा। अगर सिर्फ चमड़ा या उबरा और पानी नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है और खून उभर या चमक जाता है, या खिलाल किया या मिसवाक की या उंगली से दांत मांजे या दांत से कोई चीज काटी उस पर खून का असर पाया, या नाक से उंगली डाली और उस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल ना था तो वजू नहीं टूटा। छाला नोच डाला, अगर उसमें पानी बह गया वजू जाता रहा वरना नहीं। नाज़रीन, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे वजू फासिद हो जाता है। वजू तोड़ने वाली चीजें कौन सी है आज मैं आप लोगों को बताने, और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वजू दुरुस्त ही नहीं होगा और आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब पायखाना वदी उसे कहते हैं जो बाज लोगों को बीमारी होती है कि उसे पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेजदार चमकता हुआ पानी उनकी शर्मगाहों से निकलता है जिसकी वजह से वजू टूट जाता है और हमें दोबारा वजू करना है। और इसी तरह मजी निकलने से भी वजू टूट जाता है। मजी उसे कहते हैं जो शहवत के वक्त ज़कर के सिरे पर लेसदार चमकता हुआ पानी नमूदार होता है, उसे मजी कहते हैं। और मनी के निकलने से वजू भी फर्ज हो जाता है, वजू हो तो वजू भी टूट जाता है। और इस तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले उससे वजू फासिद हो जाता है, वजू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है। पर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले उससे वजू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी तरह
कड़वे पानी की मुंह भर कर आ जाए तो उस तरह वजू फासिद हो जाता है। यानी ऐसी कै कि जिसे रोका ना जा सके, उससे वजू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वजू टूट जाएगा, लेकिन अगर थूक गालिब आ जाए खून पर तो फिर वजू नहीं टूटेगा। उसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक है वो सुर्ख हो जाए, उससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो उससे मगलूब है, उसकी वजह से फिर वजू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वजू टूट जाएगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वजू फासिद हो जाता है और फिर दोबारा वजू फर्ज हो जाता है। उसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वजू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वजू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वजू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो उससे भी वजू टूट जाता है। नशा करने से भी वजू टूट जाता है, क्योंकि जाहिर बात है कि हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। बालिग का रुकू और सुजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहकहा लगाना, यानी जोर से हंसना, कहकहा लगाकर हंसना, उससे वजू फासिद हो जाता है। अज़्वे तनासुल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हाइल मस करना, उससे भी वजू टूट जाता है। नाज़रीन, इसी तरह बाज लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर से पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाता है? और गुस्ल करते हुए भी बंदे का हाथ लग जाता है तो क्या गुस्ल के बाद वजू करना चाहिए? तो जवाब यह है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, उससे वजू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वजू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वजू की जरूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज दाखिल होने से रोजा और बदन से कोई किसी चीज के खारिज होने से वजू टूट जाता है। तो नाजरीन, कपड़े बदलने या सर देख लेने से वजू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदलकर उसी वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनांच मौलाना मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सर खुलने या अपना या पराया सतर देखने से वजू टूट जाता है। कहता है ये बात वजू के आदाब में है, नाफ से जानू के नीचे तक सब सतर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तंजा करने के बाद फौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर जरूरत सतर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सतर खोलना हराम है। वजू करने के बाद बरहना होने से वजू नहीं टूटता, शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वजू नहीं टूटता। अगर नामहरम की तरफ भूलकर या जानबूझकर देख लिया तो उससे भी वजू नहीं टूटेगा, अलबत्ता कस्दन नामहरम को देखना जायज नहीं है। वजू की हालत में बरहना तस्वीर देखने से वजू नहीं टूटता, अलबत्ता बरहना तस्वीर देखना नाजायज और हराम है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई, वजू जाता रहा, मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा जख्म हो गया कि छली तक पहुंचा, उससे हवा निकली तो वजू नहीं टूटेगा। खून, पीप या जर्द पानी कहीं से निकल कर बहा और उसके बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सहायत थी जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है तो वजू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है, खून उभरा या चमक जाता है, या खिलाल किया, मिसवाक की या उंगली से दांत मांजे और दांत से कोई चीज काटी, उस पर खून का असर पाया और नाक में उंगली डाली, उस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल ना था तो वजू नहीं टूटा। बलगम की कै वजू नहीं टूटती, जितनी भी हो बहते खून की कै वजू टूट देती है, तोड़ देती है। जब थूक से मगलूब ना हो और जमा हुआ खून है तो वजू नहीं टूटेगा जब तक मुंह भरकर ना हो। पानी पिया मैदे में उतर गया, अब वही पानी साफ शफाफ कै में आ गया, अगर मुंह भर के है तो वजू टूट गया और वह पानी नजिस है, और अगर सीने तक पहुंचा था तो अच्छू लगा और निकल आया
تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو کی جائے گا۔ انگوٹھے یا بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ 2-3 آواز میں آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص سے کہے تو غافل تھا، پکا جواب نہ دیا تو باتیں پوچھی جائیں گی اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر سونے میں یا سجدہ تلاوت میں کہکا لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے آواز بالکل نہیں نکلی تو اس سے نہ نماز جائے گی نہ وضو۔ حدیث شریف میں بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن میں کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا سر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔